प्रभु की स्तुति हो। तो अभी हमने गीत गाया उस क्रूस की क्या बात है. So we sang this song just now. So what is this cross? What did it do? ये क्रूस क्या है और ये क्रूस ने हमारे लिए क्या किया है? Do you all give thanks to Lord for the cross? क्या आप सब खुदा को धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए? Or you feel sad and cry? या आप दुखित होकर रोते हैं? Do you give him glory and praise for the cross? क्या आप क्रूस के लिए महिमा और स्तुति करते हैं खुदा की? Or do you be sad? या आप दुखी होते हो? The biggest event in your life, सबसे बड़ा कार्य जो आपके जीवन में हुआ है, the greatest event in your life, सबसे बड़ा कार्य in history of yours and my life, आपके और हमारे जीवन के इतिहास में is that our sins was forgiven कि हमारे पापों का क्षमा हुआ on that cross. उस क्रूस पर। And when we believe in Jesus, और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं we put our trust in what He has done for us, और हम हमारा विश्वास यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया है उस पर डालते हैं, we receive His forgiveness. हम उससे क्षमा पाते हैं। And this is the greatest event of our life. और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? Because until that time, क्योंकि उस समय तक we all were spiritually dead. हम सब आत्मिक तरीके से मरे हुए थे। We were living in darkness. हम अंधकार में जीवन जी रहे थे Till that time. उस समय तक। And when we received the forgiveness, और जब हमने हमारे पापों की क्षमा पाई, when we put our trust in Him, जब हमने यीशु पर हमारा विश्वास डाला, He gives us life. तब यीशु ने हमें जीवन दिया। So that has to be the greatest event of your life. वो आपके और हमारे जीवन का सबसे महान कार्य रहेगा उस दिन। You can ask yourself and see what could be the biggest thing that happened in my life. You will have so many other reasons, so many things that happened in your life, good things. You will say those things. आपको अगर पूछेंगे कि आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ है, तो आपके जीवन में आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। But do you consider this thing as the greatest thing that happened in your life? लेकिन क्या आप इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हो? If no, then the reason is because you do not know what happened. अगर ये इसका जवाब नहीं है, तो इसका मतलब आप नहीं जानते हो कि उस क्रूस पर आपके लिए क्या हुआ। Before you lived in sin, पहले आप पाप में जी रहे थे, and now you become alive, अभी आप जीवित हो, alive unto God. खुदा के लिए जीवित हो। You receive His life. आपने खुदा से जीवन You पाया receive है, His nature, आपने खुदा का चरित्र पाया है, life of God. खुदा का जीवन। Because of that thing which happened on the cross, वो जो कार्य हुआ क्रूस पर, your sins and my sins was blotted out, thrown away. आपके और हमारे पाप क्षमा हो गए और मिटा दिए गए पूरी तरीके से। It's thrown away so that God can say about your sins that they can be sought for but couldn't be found, which Jeremiah says. इतना मिटा दिया गया कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे पाप ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं। All the past is gone and now in the present life you live for Him. आपके पूरे जीवन का अतीत जो है वो चला गया, अब जो आप जी रहे हो वो खुदा के लिए जी रहे हो। You live a different life, अभी completely अलग different. जीवन जी रहे हो अभी। You began to live in the light before you were dead in darkness. पहले आप अंधकार में मरे हुए थे, अब आप प्रकाश में जीवित हो। In simple terms, you start loving the things that God loves. आसानी से ऐसे कहा जा सकता है कि जो खुदा चाहता है वो चीजें चाहते हो, And you hate the things which God hates. और खुदा जिस चीज नापसंद करता है वो चीजें आपके लिए भी नापसंद है, Because you received a new nature. क्योंकि आपने एक नया चरित्र पाया है। You start hating sin. आप पाप से नफरत करने लगते हो, You don't love it anymore. आपको पाप से कोई प्यार नहीं है, Because Jesus gave a promise क्योंकि खुदा ने आपको एक वचन दिया है that sin shall not reign over you. कि पाप का जो आप पर अधिकार नहीं रहेगा। Through Paul, he said in Romans that sin will not reign over you. So you will not love sin. पौलुस के द्वारा रोमी के किताब में ऐसे लिखा गया है कि पाप का जो आप पर अधिकार नहीं रहेगा और आप पाप से प्यार नहीं करोगे। This all happens when you come to Christ. ये सब होता है जब आप यीशु मसीह के पास आते हो। Now the question is, have you come to Christ? अब ये सवाल है, क्या आप मसीह के पास आए हो? Maybe some of you have.
हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग आए हैं मसीह के पास, Maybe many of you haven't. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब तक नहीं आए हैं मसीह के पास। Many of you must be thinking, what am I talking about? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहेंगे कि अरे भाई क्या बोल रहा है, What is this life of God? What is this nature of God? खुदा का जीवन क्या है, खुदा का चरित्र क्या है। What is he saying? I'll start hating the things that God hates. I'll start loving the things that God loves. इसका मतलब क्या है कि हम वो चीजें नफरत करेंगे जो खुदा को खुदा जिस चीजों से नफरत करता है वो चीजें से प्यार करेंगे जिसे खुदा प्यार करता है। अर्थ क्या है इसका? Many live in the world the whole week. They do things that God hates. बहुत सारे लोग जो है इस संसार में जीते पूरे हफ्ते भर और वो सारी चीजें करते हैं जिसे खुदा नफरत करता है। And then we come on Sunday and we praise Him, we worship Him for His love that He's shown us. और संडे के दिन पे यहाँ पर आकर कलीसिया में हम स्तुति आराधना करते हैं और कहते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है। Now question is, which Jesus are you praising? अभी सवाल ये है कि कौन से यीशु की आप आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो? Because the Jesus of the Scripture will not let you live in sin. शास्त्र का जो यीशु है वो आपको पाप में जीने नहीं देगा। He will not let you do the things that He hates. खुदा यीशु जो है वो कुछ चीजें जो नापसंद करता है आपको करने नहीं देगा। Then which Jesus is it? तो That आपका you are यीशु कौन सा worshiping, है जिसकी आप आराधना करते हो? who allows you to remain the way you are. जो यीशु आपको छोड़ देता है कि आपको जैसे चाहिए आप जी लो। Have you found Christ? क्या आपको यीशु मिला है? And I pray that today you might find Him. अब हम प्रार्थना करते हैं आज कि आपको यीशु मिल जाए। So I'm going to talk about a person who found Him. अभी हम इस एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिससे यीशु मिला। His name is Philip. उसका नाम फिलिप है। We are going to see Philip's conversion. अभी हम देखते हैं फिलिप का जो है वो उद्धार कैसे होता है। Let's go to John यूहन्ना में जाते हैं। chapter 1, verse 44 and 45. यूहन्ना 1:44 और 45। I read to you. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." फिलिप बेथसाइदा का आंद्रियास और पतरस के नगर का निवासी था। फिलिप नथानियल से मिलकर बोला, मूसा ने साहित्य में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है वह हमें मिल गया है। वह नाजरेत निवासी यूसुफ का पुत्र यीशु है। So he said, "We found Jesus." वो कहता है कि हमें यीशु मिल गया। It is only by finding Christ that you can be saved. सिर्फ यीशु को मिलने के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। If you want to be saved, अगर find Christ. आपको अपना उद्धार चाहिए तो यीशु को ढूंढो। It is a personal discovery of Him. ये आपका जो है आपका और यीशु के बीच में ही रहेगा ये। You discover Him like the man who found the hidden treasure in the field. आप ऐसे खोजोगे यीशु को जैसे किसी व्यक्ति ने एक खेत में जाकर खजाना पाया हो। As Jesus said in His parable, Matthew chapter 13. जैसे यीशु ने कहा मत्ती 13 में। So Philip found Jesus Christ. तो फिलिप जो है उसको यीशु मिल गया। So what do you mean by found? मिला इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? When Philip says that I found Jesus, we found Jesus, what does that mean that he found Jesus? फिलिप ऐसे कहता है कि मुझे यीशु मिला। मिला का अर्थ क्या होता है? You ask for yourself. When you say, for example, I say that I found my book. अगर आप ऐसे कह सकते हो कि मुझे ये किताब मिली, What does that mean? उसका अर्थ क्या है? It means, amen. It means that I was searching for it. इसका अर्थ ये है कि हम उस किताब को ढूंढ रहे थे। So Philip was searching for the Messiah, for Christ. फिलिप जो है वो मसीह को ढूंढ रहा था। That's why he could say that I found him. I found Jesus. इसीलिए वो ऐसे कह सका कि मुझे यीशु मिला। Else he would have said that I met Jesus. वरना वो कहता कि मुझे यीशु ऐसे मिला। He would never मुलाकात हुई say. यीशु के साथ। He would never say that he found Jesus. वैसे नहीं कहता कि मुझे यीशु मिला, वैसे कहता कि मेरी सिर्फ मुलाकात हुई। So to find Jesus, there has to be a search after him. इसका अर्थ ये है कि आपको ढूंढना जरूरी है। And before even searching him, there has to be something more. यीशु को ढूंढने से पहले भी और कुछ कार्य है।
That is the consciousness of needing Him. इसका अर्थ ये है कि आपको ऐसे जानना चाहिए कि हाँ मुझे यीशु की जरूरत है। So Philip searched Him because he felt a need for Christ. ये फिलिप जो है उसने यीशु को ढूंढा, क्यों? क्योंकि उसे लगा कि उसे यीशु की जरूरत है अपने जीवन में। He knew that there is a need for the Messiah. वो ऐसे जानता था कि एक मसीह की जरूरत है उसे। Because nobody searches for something that they don't need. हम में से कोई ऐसी चीज नहीं खोजता है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। So do you feel that you need the Savior? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपको मसीह की या उद्धारकर्ता की जरूरत है? Do you know that you need the Savior? क्या आप जानते हो कि आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है? Because you will never seek Him unless you understand, you feel and know that you need the Savior. आप तब तक मसीह को नहीं ढूंढोगे, उद्धारकर्ता को नहीं ढूंढोगे जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपको उसकी जरूरत है। But how? How are you going to feel and know that you need Him? लेकिन आप कैसे जान सकते हो कि आपको उसकी जरूरत है? You must recognize that there is sin in you. आपको ये जानना पहले बहुत जरूरी है कि आपके अंदर पाप है, That sin dwells inside you, कि आपके अंदर पाप है, as Paul says in Romans. जैसे पौलुस कहता है रोमी की किताब में। This sin for which you cannot make atonement. ये पाप जो है उसके आप बदले में आप कुछ नहीं कर सकते हो। You cannot save yourself. आप खुद को नहीं बचा सकते हो। This sin you cannot overcome. ये पाप पर आप विजय नहीं पा सकते हो। When you recognize that, जब आप ये बातें समझ जाते हो, then you will say that I need the Savior. तब आप समझोगे कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। You will, when you understand that I am such a great sinner, जब आप ये समझोगे कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ that only God can save me. कि सिर्फ और सिर्फ खुदा मुझे बचा सकता है, You need a stronger arm. तभी आपके पास एक बहुत ज्यादा ऐसे मजबूत गढ़ रहना चाहिए, हाथ। You need divine help. आपको दैविक चीजों की जरूरत पड़ेगी। And you will not know that you need Jesus unless you understand this. और जब तक आप ये सारी चीजें नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपको यीशु की जरूरत है। One more thing. एक और बात, It's not about just knowing that you need Him. सिर्फ यही जानना जरूरी नहीं कि हाँ मुझे यीशु की जरूरत है, Because you will not understand that before one more thing. ये आप नहीं समझोगे जब तक एक और चीज नहीं समझने वाले हो। Do you know and do you understand that Jesus is only you have? क्या आप ये जानते हो कि यीशु ही है आपके पास, उसके अलावा और कुछ नहीं है? It's not just that I need Him, it is that I have nobody else except Him. ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ यीशु की जरूरत है, ये भी है कि यीशु के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। So first you need Him, then when you understand that you need Him, you will search Him. पहली बात तो ये है कि आपको उसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए, फिर आप यीशु को जाकर ढूंढोगे। Now the question is, search where? अभी सवाल ये है कि ढूंढे तो ढूंढे कहाँ पर? Where did Philip search Him? फिलिप ने उसे कहाँ ढूंढा? Let's read again. इसे पढ़ते हैं। Philip found Nathanael and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. मूसा ने साहित्य में और जो नबियों ने जिसके विषय में लिखा है, हमें वह मिल गया है, वह नाजरत निवासी यूसुफ का पुत्र यीशु है। So where did Philip search him? फिलिप ने उसे कहाँ ढूंढा यीशु को? In the scriptures. शास्त्र में। He searched him. He speaks about the law, the Moses and the prophets writing about the Christ, the Messiah. फिलिप वैसे यहाँ पे बताता है कि मूसा ने और नबियों ने यीशु के बारे में लिखा है। So if you want to search Jesus, then search him in the scriptures. अगर आपको यीशु को ढूंढना है तो यीशु को शास्त्र में ढूंढो। Because Jesus said that the scriptures they testify of me. यीशु ने खुद कहा है कि शास्त्र जो है वो मेरी साक्ष्य देते हैं। John chapter 5 verse 39. यूहन्ना 5:39। He says you search the scriptures because you think that in that you have eternal life, and it is they that testifies about me. तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो, यह समझकर कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा, वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। So you search him in the scriptures.
तो तुम यीशु को धर्म ग्रंथ मतलब शास्त्र में ढूंढो। You cannot search him anywhere else. आप यीशु को और कहीं नहीं ढूंढ सकते हो। You cannot search him in some concert. यीशु को किसी कॉन्सर्ट में नहीं ढूंढ सकते हो। You cannot search him on all the things that you do except the word. बाकी सारी चीजें जो आप करते हो उसमें आपको यीशु नहीं मिलेगा। Now, one more thing. There are many who believe that Jesus is there in other books. बहुत सारे लोग ऐसे भी विश्वास करते हैं कि यीशु दूसरी किताबों में भी है। So one book we know that we have been studying since so many weeks. About one book we know. एक और किताब के बारे में हम जानते हैं जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं अभी इतने दिनों से। Many believe that Jesus is written in that and they believe that it is true. बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि यीशु के बारे में जो लिखा वहाँ पे है वो सत्य है। Many even believe the book which Hindus have. In that also Jesus is there. बहुत सारे हिंदू के किताबों में भी ऐसे यीशु के बारे में लिखा गया है। But is it really true? लेकिन क्या वो सत्य है? You have to be very careful when you say that Jesus is there in those books. आपको ऐसे बहुत सावधानी से कहना पड़ेगा कि यीशु जो है वो दूसरों किताबों में भी है। When Jesus was told that you do the works by the power of Satan. जब यीशु को ऐसे कहा गया कि तुम शैतान के अधिकार के द्वारा ऐसे ये बाकी सारे काम करते हो। Jesus warned them, saying that be careful, you are coming near the unpardonable sin. यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि तुम ऐसे पाप के पास आ रहे हो जिसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। Because they were attributing the works of God to works of Satan. क्योंकि वो खुदा के कार्यों को शैतान के कार्यों के साथ जोड़ रहे थे। And if you believe that Jesus is there in those books which is influenced by Satan, अगर आप ऐसे विश्वास करते हो कि यीशु जो है वो किताबों में भी है जिसका शैतान के द्वारा उन पर नियंत्रण हो रहा है, then you are saying that Satan's work is the work of God. आप ये कह रहे हो कि शैतान का कार्य जो है वो खुद खुदा का कार्य है। You are attributing the work of Satan to work of the Holy Spirit. आप जो शैतान का कार्य है उसको पवित्र आत्मा के कार्य के साथ जोड़ रहे हो। And you have to be very careful of this. आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी इन चीजों में। So many have not found him. बहुत लोगों ने अभी तक यीशु को नहीं ढूंढ पाया है। Because many have not searched him in the scriptures. क्योंकि बहुत सारों ने अभी तक यीशु को धर्म ग्रंथ और शास्त्र में नहीं ढूंढा है। Do you really read the word to find him? क्या आप वचन पढ़ते हो ताकि आप यीशु को पाए? To know Christ? ताकि आप यीशु के बारे में जाने? To understand who he is? ये जानने के लिए कि वो कौन है? Or you just read it for satisfying your conscience? या आपके ऐसे विवेक को शांत करने के लिए आप ऐसे पढ़ते हो? Or to just tick mark the checklist? कि हाँ ठीक है हमने ये पढ़ लिया आज के लिए, ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो? And today I read this chapter, tomorrow I am reading this chapter. By end of this year I am going to finish the Bible. आज ये अध्याय पढ़ रहे हैं, कल वो अध्याय, साल के अंत में पूरा शास्त्र पढ़ के हो जाएगा हमारा। You read to search him. क्या आप ऐसे पढ़ते हो ताकि आप यीशु को उसमें ढूंढो? Search him in the scriptures and you will find him. यीशु को शास्त्र में ढूंढना और आपको यीशु जरूर मिलेगा। So Philip searched Christ in the scriptures. फिलिप ने जो है वो यीशु को शास्त्र में ढूंढा। And I personally believe, according to the Bible, that he just not only searched him, he also prayed. हम ये जानते हैं कि उसने बस ऐसे शास्त्र में यीशु को नहीं ढूंढा, उसने उसके लिए प्रार्थना भी की। He prayed to God to reveal Christ to him. फिलिप ने जो है वो प्रार्थना किया खुदा के पास कि मुझे बताओ कि यीशु कौन है। Because it's not the work of natural man to understand this. कि सांसारिक इंसान का काम नहीं हो सकता है कि पता चले कि मसीह कौन है। Because the word says the mind is blinded, the eyes is blinded by the God of this world. वचन ऐसा कहता है कि हमारी आंखें जो है अंधकार में, हमारे मन जो है अंधकार में है। In Romans it says that you cannot understand the things of God. रोमी में ऐसे लिखा गया है कि हम खुदा के कार्यों को नहीं समझ पाएंगे। You cannot seek after him. You do not seek after him. आप नहीं जाओगे खुदा की चीजों के पीछे। Natural man cannot understand the things of God. ये जो सांसारिक मनुष्य है वो हम नहीं कर सकते ये सारी काम। Because what born of flesh is flesh. कि जो जिसका जन्म जो फ्लैश के द्वारा हुआ है वो वैसे ही कार्य करेगा। So to see Christ in the scriptures, you need help from God. यीशु को जो है शास्त्र में पाने के लिए आपको खुदा की जरूरत लगेगी। That's why we know that Philip prayed that God would reveal to him Christ. इसीलिए हम जानते हैं कि फिलिप ने प्रार्थना की कि खुदा उसे बताएगा कि मसीह कौन है। You need to pray to God to reveal Christ to you, to open your eyes and your mind. अपने खुदा के पास ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको बताए कि मसीह कौन है और आपके मन और आपकी आंखें खोलने के लिए You need to pray to God. आपको खुदा के पास प्रार्थना करना जरूरी है। So when you realize that you really need him,
you pray to God to give you Christ. जब आप ये समझ जाते हो कि आपको यीशु की जरूरत है, तब आप खुदा से प्रार्थना करते हो कि आपको यीशु दे दे, Because without Christ, you cannot live. क्योंकि यीशु के बिना आप नहीं जी सकते हो. You think that, okay, I needed Him during the time of forgiveness of sins. After that, I don't need Him. आप तो ये समझ जाओगे कि हाँ, मुझे सिर्फ पापों की क्षमा के लिए यीशु चाहिए था, अब मुझे यीशु की जरूरत नहीं है. You need Him every day, आपको यीशु प्रतिदिन चाहिए, even after your sins are forgiven. आपके पापों का क्षमा होने के बाद भी, Else you will live a defeated life. वरना एक हारा हुआ जीवन जियोगे आप. You know, the growth of a Christian एक मसीह का जो आगे बढ़ने का कार्य होता है, is not upwards. वो ऊपर की तरफ नहीं होता है. The growth of a Christian is downwards. एक मसीह का जो आगे बढ़ने का कार्य है, वो नीचे की तरफ होता है. When he sees more and more of Christ, जब वो और यीशु के बारे में देखता है, he sees more and more of himself. वो अपने आप को और जानने लगता है. And the more he sees Christ and the more he sees himself, there is no other way than to go down and down. जब वो अपने आप को और ज्यादा देखता है और खुदा को और ज्यादा देखता है, तो और कोई कार्य नहीं बचता उसके पास, बस नीचे जाना, झुकना है. There is a woman of God who once saw a cow खुदा की एक महिला है जिसने एक गाय देखा and the tail of a cow. और उस गाय की एक पूंछ देखी. And she said that the growth of a Christian is like the tail of the cow. वो ऐसे कहती है कि एक मसीह का जो जीवन आगे बढ़ने का है, वो एक गाय की पूंछ के समान है. The more the tail grows, it goes downwards. जितना और वो पूंछ बढ़ता है, उतना वो और नीचे की तरफ जाता है. Surely God only taught her something there. हाँ, ये हो सकता है कि खुदा ने उसे कुछ सिखाया इस बारे में. You come like a beggar at the feet of Jesus. आप एक भिखारी के जैसे आते हो यीशु के चरणों में. You cry unto Him आप रोते हो उनके सामने, like a beggar. एक भिखारी की तरह. Like you say, like a beggar, I fall at your feet. At your feet I lie. Give me Christ, else I die. ऐसे कह सकते हो कि हाँ, कि मैं भिखारी की तरह आ रहा हूँ आपके पास, आपके चरणों के पास, मुझे यीशु दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा. And it is true. Believe me, it is true. और ये सच है, मान लो हमारी बात, ये सच है. Because the more you're going to see yourself, you're going to go downwards, and you will need Jesus every day in your life. जितना आप अपने आप को जानोगे, उतना आप और नीचे की तरफ जाओगे और समझ जाओगे कि आपको यीशु की जरूरत है प्रतिदिन. This is true of every Christian. ये हर एक मसीह के बारे में ये सत्य है That give me Christ, else I die. कि मुझे यीशु दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा. And come is the call. ये बुलाहट है. The Lord says, come. खुदा कहता है आ. You need to receive Him. आपको उसकी जरूरत है. Jesus said that he who comes to me, I will in no wise cast him out. यीशु खुद कहता है कि जो मेरे पास आएगा, मैं उससे नहीं त्यागूंगा. He also said that the one who receives Christ, those who receive Him, to them, He gives the right to be the children of God. या ऐसे भी लिखा गया है शास्त्र में कि जो यीशु मसीह को मानते हैं, तो उसे खुदा के बच्चे कहकर बुलाया जाएगा. We are there only, so we'll go to verse 12. John chapter 1, verse 12. यूहन्ना 1:12. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया. But many believe that all are children of God. लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे मानते हैं कि सब जो है वो खुदा के बच्चे हैं. Where is it in the Bible? शास्त्र में कैसे, कहाँ है ये? Bible teaches only those who receive Him are children of God. शास्त्र में तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो यीशु को मानते हैं और अपनाते हैं, सिर्फ वही खुदा के बच्चे हैं. Because not everybody is children of God. सब जो है वो खुदा के बच्चे नहीं है. So then with Philip, after receiving Christ with Philip, you will also say that we have found Jesus. जब आप यीशु मसीह को पाओगे, तब आप फिलिप के जैसे कहोगे कि हाँ, मैंने मसीह को पाया है. So Philip found Him, and it is true. फिलिप ने जो है वो मसीह को पाया. Same like Philip, you may also find Him, and it will be true. फिलिप के जैसे आप भी यीशु को पाओगे और ये भी सच रहेगा. You will say that I received Christ, I accepted Him. आप ऐसे कहोगे कि मैंने यीशु को पाया है और मैंने उसका स्वीकार किया है. I came to Jesus. मैं मसीह के पास आया, I chose Jesus. मैंने यीशु को चुना. I believe in Him. मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ. But that's Philip's description. ये जो है वो फिलिप की बातें हैं. And that's your description. और ये आपकी बातें हैं.
And it is true और ये सत्य है that you came to Christ and you believed in Him कि आप यीशु के पास आए और आप उन पर विश्वास करते हो and you repented. और आपने पश्चाताप किया। It is true, ये सच है, but it is half truth. लेकिन ये आधा सच है, It's half truth. आधा सच है। And half truth doesn't give God the glory. आधा सच जो है उसमें खुदा को महिमा नहीं मिलती है। So then let's see the full truth. आइए पूरा सच देखते हैं। We saw the description of Philip. अभी हमने फिलिप के बारे में देखा यहाँ पर। So now let's see the description of Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा का वर्णन जो है वो देखते हैं। We see the description of God about this. खुदा का जो वर्णन है इन चीजों के बारे में वो देखते हैं क्या है। Just go little up on verse 43. पहला यूहन्ना 1:43। यूहन्ना 1:43 सॉरी। The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Follow me." दूसरे दिन यीशु ने गलीली जाने का निश्चय किया। उसकी भेंट फिलिप से हुई और उसने उससे कहा, मेरे पीछे चलो। So what happened? तो क्या हुआ? Jesus finds Philip before Philip found Jesus. पहले यीशु फिलिप से मिला, फिलिप यीशु को मिलने से पहले। Philip found Jesus because Jesus found Philip. फिलिप को यीशु मिला क्यों? क्योंकि पहले यीशु फिलिप को मिला। It is the previous work of God. ये खुदा का कार्य है पहले। It is Jesus finding Philip. यह है यीशु ने जो फिलिप को ढूंढा। Though Philip did not know about it, फिलिप उसके बारे में नहीं जानता था। Philip thinks that he is finding Jesus. फिलिप को ऐसे लगता है कि उसने यीशु को पाया। But it was Jesus who found Philip. लेकिन सच ये है कि यीशु ने खुद फिलिप को ढूंढा और This पाया। was the previous work of God. ये जो है वो पहले का कार्य है खुदा का। All who have come to Christ, truly come to Christ, they understand this truth that it is God who found you. ये अभी सब जो पहले जो यीशु के पास सच्चे तरीके से आए हैं वो ये जानते हैं कि पहले खुदा ने हमें ढूंढा है। They understand this truth that if Christ wouldn't have found me, I would have been lost. वो ये सच भी जानते हैं कि खुदा हमें नहीं ढूंढता तो हम भटक जाते हैं। Because it is Christ and Christ alone who finds his sheep. क्योंकि खुदा ही है जो अपने भेड़ को ढूंढता है। So it is Christ who finds you. मसीह जो है वो आपको पहले ढूंढता है। Just think about this. When you came to Christ, when I come to Christ, आप इस बात का विचार कीजिए जब आप मसीह के पास आए और हम मसीह के पास आए, you start becoming the first thing that happens. You began to think. पहली चीज ये होने लगी कि आप ऐसा विचार करने लगे, सोचने लगे। You become thoughtful. आप सोचने लगते हो। You become thoughtful of the things of God. आप खुदा की चीजों के बारे में विचार करने लगते हो। How is it possible? ये कैसे संभव है? Who gave that thoughts to you then? किसने ये सारी बातें आपके मन में डाल दी? About salvation, suddenly you start thinking about heaven and hell. उद्धार के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, ये सारी बातें आप सोचने लगते हो। You were ignorant and careless. पहले आप ऐसे ही ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते थे। And now suddenly you have started thinking about all these things. अभी ये सारी चीजों के बारे में आप सोचने लगे हो। Bible says that you were sheep that have gone astray. शास्त्र में ऐसा लिखा गया कि अब हम उस भेड़ के जैसे हैं जो चले गए थे दूर। But now suddenly you have started thinking about Christ. लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आप मसीह के बारे में सोचने लगे हो। So who gave you those thoughts? किसने आपके मन में ये सारे विचार डाले हैं? Surely it was God the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा का ही कार्य है आपके अंदर, who made you think. जिसने आपको सोचने लगाया। He showed you mercy. उसने आप पर करुणा दिखाई। Now the sense of your sinfulness. आपके पाप के बारे में अभी That how did you come to know that you are really a sinner? आप कैसे जानने लगे हो कि आप पापी हो? Because we all know, we live with people and we know that nobody says that they are sinners. हम जानते हैं कि हम लोगों के साथ रहते हैं और कोई ऐसे नहीं कहता कि हाँ हम पापी हैं। They think that okay, I am better than this person and that person. वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं इस व्यक्ति से बेहतर हूँ और उस व्यक्ति से बेहतर हूँ। But the sense of your sinfulness and the need for Savior, how did that come? आप पापी हो इस बात के बारे में आपको कैसे पता चला और आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है ये आपको कैसे पता चला? Because there was a time when you had no such sense. पहले ऐसा होता था कि आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान भी नहीं था। Then who gave you this sense? किसने आपको इन चीजों के बारे में बताया? Who gave you repentance? किसने
किसने आपको ऐसे पश्चाताप करने के बारे में बताया? Who gave you the sorrow for sin? किसने आपको ऐसे विलाप करने के लिए समझाया कि पापों के लिए? Sorrow about your own sins. अपने खुद के पापों के लिए विलाप करना किसने सिखाया? Sorrow for your nature. आपके खुद के चरित्र के बारे में Who gave you the desire for Christ? किसने आपके जीवन में ये उत्पन्न किया कि आप मसीह को चाहे? Again, do you think that it is the work of fallen human nature? क्या आप ऐसे सोचते हो कि गिरे हुए मनुष्य के चरित्र के द्वारा ये सारी बातें हो सकती है? Let away with those thoughts. ये सारी बातें छोड़ दो, Because again, क्योंकि फिर से that which is born of flesh is flesh. क्योंकि जो शारीरिक तरीके से उत्पन्न हुआ है वो नाश शारीरिक तरीके से उत्पन्न ही होगा। Natural man cannot think about all these things. सांसारिक मनुष्य इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता है। It is impossible for man to come to Christ. असंभव है कि कोई इंसान मसीह के पास आए। So it was Christ who gave you these things. मसीह ने ही आपको ये सारी बातें बताई। Then you began to pray. फिर आप प्रार्थना करने लगे। I'm talking about real prayer, हम सच्चे प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, not the by-hearted prayers. ऐसे रटी रटाई प्रार्थना के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। Because those prayers we did in our fallen human nature also. क्योंकि वो प्रार्थना जो है हम अपने गिरे हुए चरित्र ने भी किया है। The real prayer, real cry to God. सच्ची प्रार्थना, रोकर प्रार्थना खुदा के पास, Have mercy on me, O हम God, a हम पर sinner. दया करो खुदा, हम पापी हैं। That sorrow and that anguish, वो जो विलाप है, वो जो शोक मनाया हमने, who gave that to you? किसने दिया आपको ये? Who gave you that cries? किसने आपके भीतर ये ऐसे रोना डाला, विलाप डाला आपके पापों के लिए? Surely it was God. ये पक्का खुदा का कार्य है। Then when you believed in Him, जब आपने मसीह में विश्वास किया, when you put your trust in Him, जब आपने मसीह पर पूरी तरीके से अपना विश्वास डाला, who gave that faith to you? आपको ये विश्वास किसने दिया? Is not that faith a gift of God? ये जो विश्वास है, ये खुदा के द्वारा आपके लिए कोई उपहार नहीं है, Is it तोहफा not नहीं है that God gave you that faith? कि खुदा ने आपको ये विश्वास दिया। You know, when I was a child, and you must have also seen some magic tricks that happens. जब हम बचपन में देखते थे कोई ऐसे मैजिक का कुछ कार्य होता था, And you must have seen one of the tricks that on a table there is a needle, and the trick is that the needle starts moving automatically. एक सुई रखी जाती थी टेबल पे और वो सुई जो है ऐसे हिलती थी। So you think that the needle is moving, आपको ऐसे लगता है कि वो सुई हिल रही है, but when you grow and when you understand that it was the magnet that was moving the needle from below. आप जब बड़े हुए तब आप जाने कि वो सुई नहीं हिल रही है, उसके नीचे का जो लोचंबक है वो हिल रहा है। So it is similar that it is the magnet of His grace that moves us in faith. ये खुदा का अनुग्रह है जो हमारी विश्वास को उसके तरफ मोड़ देता है। Then we see again that Jesus is going on a journey to find Philip, फिर हम ऐसे देखते हैं कि यीशु जो है वो खुद फिलिप को ढूंढने जा रहा है, to find a soul. एक आत्मा पाने के लिए। Again, why would he go to find Philip? यीशु खुद जो है वो फिलिप को ढूंढने क्यों जा रहे थे? Why does he go to Philip, not anyone else? फिलिप के पास क्यों जा रहे थे यीशु और किसी और के पास क्यों नहीं? It says he decided to go to Philip. यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि उसने निश्चय किया कि वो फिलिप को ढूंढने जाएंगे। He decided, it was his will. ये उनके अंदर का निश्चय है कि फिलिप को ढूंढने जाएंगे यीशु। Why did Christ found me and you? यीशु ने जो है वो आपको और हमें क्यों पाया? Because he decided. क्योंकि यीशु ने ऐसा निश्चय किया, That's it. बस उतना ही। You don't ask him why me, why not him, why not me. आप ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि मैं क्यों और वो क्यों नहीं। He decided to find him. यीशु ने खुद निश्चय किया है It इस was बात his के बारे will. में। यीशु के इच्छा के अनुसार है। And today I pray that he may find you. आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपको पाए, And आपको ढूंढे। when he finds you, then you see his effectual call. फिर आप देखोगे कि यीशु आपके अंदर क्या बदलाव लाएगा। When Christ says follow me, जब यीशु कहेगा कि मेरे पीछे हो ले, it is an effectual call. It is irresistible. आप उससे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो जब यीशु आपको बुलाता है। When Christ says follow me, you cannot resist that. जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, तब आप उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। He says follow me. वो कहता है मेरे पीछे हो ले। Come, poor soul, you do not know the way. तुम रास्ता मार्ग नहीं जानते हो, मेरे पीछे हो ले। Follow me, he says. मेरे पीछे हो ले, ऐसे यीशु कहते हैं। This crucified Savior says follow me.
ये जो क्रूस पर चढ़ा गया व्यक्ति कहता है कि मेरे पीछे हो ले। This resurrected Savior says, follow me. ये जिस उद्धारकर्ता किया उसने हमें बोला है कि मेरे पीछे हो ले। This Savior on the throne says, follow me. ये जो सिंहासन पर विराजमान है वो हमसे कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। And this Lord and Savior who is going to come in glory says, follow me. ये जो उद्धारकर्ता जो फिर से अपनी महिमा में वापस आने वाला है वो कह रहा है मेरे पीछे हो ले। Take him as all your hope. आपकी एक आशा के जैसे यीशु को ले लो। Receive him as your hope. आप एक आशा की तरह उसे ग्रहण करो। Because you have nobody else than Christ. क्योंकि मसीह के अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father God, we come before you, my Lord. स्वर्गीय पिता हम आपके सम्मुख आते हैं Lord, for your people, my Lord. आपके लोगों के लिए I pray, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं। today you might find, O Lord, some of us gathered here, Lord. आप हम में से किस लोगों को चुन ले मिले। We beg to you, O Lord, that you find us, Lord. हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ढूंढ लो आज। O Lord, you open our hearts हमारे हृदय को खोलो so that we might search Christ in your word, Lord. ताकि हम शास्त्र में यीशु मसीह को ढूंढे। O Lord, open our minds, O Lord, प्रभु हमारे मन को खोलो to understand who we are, Lord, ताकि हम ये समझे कि हम कौन हैं and who Christ is. और मसीह कौन है। Help us, O Lord, to seek you, Lord. हम आपको ढूंढे खुदा। In Jesus' name I pray. ये प्रार्थना हम मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।